व्हाट डज दशा मीन? जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि दशा हर प्लैनेट का एक प्लैनेटरी पीरियड होता है जिसमें कि वो अपने अपने रिजल्ट्स देता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो और चीजें और फैक्टर्स क्या हैं. Dasha pattern shows which planets, according to Jyotish, will be ruling at a particular time. There are many types of Dasha systems like Gemini, Ashtotri, Yogini, Kal Chakra, and many, many more. But the most popular we'll be discussing here is Vimshotri Dasha, which is most popular in Kali Yuga. It is means in Vimshotri, 120 years is the time span. Every planet is means given some years to rule over, we can say. So, like it's a nakshatra based dasha system, and it like Ketu is allotted 7 years, followed by Venus 20 years, then Sun 6 years, then Moon 10 years, Mars 7 years, Rahu 18 long years, Jupiter 16 years, Saturn 19 years, Mercury 17 years in the order of their operation. As I've told, it's a nakshatra based dasha system. So every planet has an aggregate period as mentions. But one question which comes to my mind is that how did this order of dashas come into being? And ये nakshatra based dasha जो होती है वो होती क्या है? तो our zodiac has been divided into 27 nakshatra, 27 nakshatra हैं. Starting with the Ashwini nakshatra, then we have the Bharani nakshatra, Kritika, Rohini, and the last and the 27th nakshatra is the Revati nakshatra. एंड हर 10वां नक्षत्र जो होता है वो सेम प्लैनेट का आता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टार्टिंग विद द अश्विनी नक्षत्र, देन द 10th नक्षत्र फ्रॉम दिस is going to be the Magha Nakshatra, and the 10th from this, that is the 19th Nakshatra, is the Mool Nakshatra. So, what we see is that ये जो तीनों नक्षत्र हैं वो सेम ही प्लैनेट के आ रहे हैं. Now, I would like to just recite a small shloka from Bhagavad Gita, which beautifully explains the reasons why we have the Dashavatar of Bhagwan Vishnu. Yada yada hi dharmasya glanir bharat abhyuthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham paritranaya sadhunam vinashaya च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. तो पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था. So सृष्टि started with the मत्स्य अवतार of भगवान विष्णु, and the dasha system started with the Ketu Mahadasha, and then there is a cyclic order. Yes, exactly. हम सब में लाइक आई वुड लाइक टू डाइव मोर इनटू द टॉपिक. हम सब में कि कई बार ऐसा होता है कि हम में से कईयों की महादशा सेम होती है बट हमें रिजल्ट्स डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे होते हैं और हम सब एक ही जैसे महादशा में एक ही जैसा नहीं रहता हमारी पूरी महादशा. वाई? क्यों होता है ये सब? Like it, I have already mentioned, there are some factors on which the dasha of a planet depends, like in which sign is the planet placed, then in which bhava it is placed, then what yogas it is forming, then the means the dashanath is having any aspect or in which means किसी प्लैनेट का उसके ऊपर एस्पेक्ट है या वो किस प्लैनेट्स को एस्पेक्ट कर रहा है. देन फर्दर मोर आर ऋषिज हैव डिवाइडेड द दशा into 5 periods. Mahadasha of the planet will always be the boss. Then divided into sub-periods, Antardasha or Bhuktis, again ruled by 9 planets. For example, on the starting of Mahadasha of Budh, we'll start with Budh May Budh. Then the sub-period of Budh May Ketu. Then the sequence will follow. And then sub-period, the Pratyantar Dasha, to gain more accuracy in analyzing the timing of an event. कि हम और एक्यूरेसी अगर एग्जैक्टली बताना है तो प्रत्यंतर दशा, देन सूक्ष्म एंड देन प्राण. These all along with transits are responsible for the event to occur. कोई भी एक चीज अकेले घटित नहीं होती. It depends on to many factors as I'm again and again stressing on to. Thus, the concept of the time zone of one's life leads to closer study of ups and downs and trends in the person's life. The effect of planets is always there.
एवरीथिंग इज फेवरेबल। अगर सब कुछ एक मतलब हमारे फेवर में है, दशानाथ का जो अंतरदशा है वो फ्रेंड है, एंड देन उसके ऊपर एस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो हमारा टाइम बहुत अच्छा रहेगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। बट अगर कुछ चीजें फेवरेबल है और कुछ अनफेवरेबल है, तो फिर हमारे को मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। I'll just add a couple of points. Like you mentioned that there are dozens of dashas. That's true. Nakshatra based बहुत सारी दशाएं हैं, और विमशोत्री महादशा बहुत पॉपुलर महादशा है, हाईली यूज्ड एंड मोस्टली इफेक्टिव, बट सम केसेस में इट्स नॉट. And apart from that, there is something called transits. Now, transits it works in alignment with a dasha. Transit is like the final call, या वो final manifestation of जो event होता है, वो दशास के साथ जब sync होता है transit, तब वो event occur होती है. ठीक है, जैसे फास्टेस्ट मूविंग ट्रांजिट अगर प्लैनेटरी बात करें तो मून जो है वो सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो वो 2.5 दिन में अपनी राशि बदलते हैं. लाइक जब अभी आपने बताया कि मून हैज 10 years ऑफ महादशा, राइट, बट उनका ट्रांजिट जो है वो 2.5 दिन में राशि बदलते हैं, हर दिन नक्षत्र बदलते हैं. So let's say for example some native who is in moon mahadasha, he or she will also be influenced with the transit of moon. जो महादशा पीरियड में हम लोग whatever महादशा पीरियड we are running in, along with that the transit of same planet will be influencing us at the same time. Also there is a change in life path, like you also mentioned कि एक दशा से हम दूसरी दशा में जाते तो there is a change of life path which is there. और दशा छिद्र या एंड ऑफ दशा जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स से somebody is in मार्स महादशा, उनका फाइनल चल रहा है मार्स में, लेट्स से मून इज रनिंग एंड देन राहु विल स्टार्ट, राहु विल स्टार्ट. सो दैट पीरियड ऑफ दशा चेंज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो थोड़ा सेंसिटिव पीरियड होता है. देयर आर लॉट्स ऑफ वाइब्रेशंस, यू फील लाइक चेंजिंग थिंग्स, बिकॉज महादशा नाथ चेंज होने वाले हैं, तो दिमाग में वो आइडियाज ही चेंज होने लगते हैं, बिकॉज महादशा लॉर्ड इन्फ्लुएंसेस योर माइंड. हम जो भी ट्रांजिट्स भी देखते हैं ज्योतिष में, तो हम ट्रांजिट देखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मून ऑल्सो. चंद्र को लगन मान के भी हम पूरा ट्रांजिट स्टडी करते हैं, राइट. एंड इफ यू लुक एट मेनी वीडियोज ऑन द इंटरनेट जो एनुअल प्रेडिक्शंस करते हैं, या जैसे राशि चेंज होती है, जैसे गुरु है या शनि है या राहु केतु, इनकी जैसे राशियां चेंज होती हैं, तो वैसे वैसे लोग वीडियोज बनाने लगते हैं. दे स्टार्ट प्रिडिक्टिंग फ्रॉम मून्स पॉइंट ऑफ व्यू. क्यों ऐसे होता है? क्यों ऐसे करते हैं वो लोग कि मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, ठीक है. उसके बाद सेकंड स्पीड वाइज कौन है सबसे फास्ट? मर्क्यूरी, बिकॉज मर्क्यूरी का जो ऑर्बिट है वो सूर्य के आसपास है. उसके बाद है वीनस, बिकॉज वीनस इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू सूर्य एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इवनिंग स्टार बिकॉज इट्स विजिबल इन द इवनिंग समटाइम्स फ्रॉम सम ज़ोडिएक साइंस. उसके बाद हमें पता है कि सूर्य तो हर महीने राशि बदलते हैं, जिसके ऊपर पूरा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सिस्टम बेस्ड है. उसके बाद है मंगल, मार्स भी रेट्रो होते हैं, बुध भी रेट्रो होते हैं, वीनस ऑल्सो गेट्स रेट्रोगेट, बट स्पीड वाइज देन इज मार्स. मंगल के बाद या मार्स के बाद है जुपिटर, क्योंकि गुरु जो है वो 12 to 13 months लगाते हैं एक ज़ोडिएक साइन को कंप्लीट करने में. सो आफ्टर जुपिटर इट इज राहु केतु, आई वुड से, क्योंकि उनको 1.5 साल लगता है. Although Rahu Ketu are not visible planets, but they have heavy influence on all of us, we know that, and they are mathematical points. तो उनका 1.5 साल का, I mean 18 months का ट्रांजिट रहता है. राइट नाउ राहु इज एक्सॉल्टेड इन केतु स्वराशि एज वेल. सो उसके बाद है शनि, जो आउटर मोस्ट प्लैनेट है, जो सबसे दूर है, जो 2.5 साल लगाते हैं, 2.5 years का पीरियड वो लेते हैं एक साइन से दूसरी साइन में जाने के लिए, और रेट्रोगेट भी होते हैं. इस समय वो रेट्रोगेट है Saturn, and I think Jupiter is also retrograde right now. So उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हम सब पे रहता है considering transit. But transits alone cannot bring all the results. फिर भी उसमें से सबसे जो पॉपुलर ट्रांजिट है वो आई थिंक इज ऑफ शनि, क्योंकि ढैया जो है इट्स अ रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ मून वर्सेस शनि. ढैया का जो प्लेसमेंट होता है वो शनि देव की वजह से होता है, क्योंकि 2.5 साल बहुत it's a considerable amount of time, right? 2.5 साल में जो इवेंट्स होती है वो इम्पैक्टफुल हो सकती है, हमारे ऊपर चेंजेस आ सकती है बहुत लाइफ में. एंड मून, जो चंद्रमा बार बार बदलते हैं, जो हमारा माइंड बदलते रहता है, बिकॉज इट्स द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ द ट्रांजिट. एंड देन लाइक विद महादशा आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड कि देर आर साइकिल्स मीन्स लाइक जुपिटर completes its cycle in 12 years.
तो वो 12 years का पीरियड में वो अपना साइकिल एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, एंड शनि टेक्स लाइक 30 years टू फिनिश वन एंटायर साइकिल. सो इन दोनों प्लैनेट्स का बहुत हैवी इंपॉर्टेंस है. और जैसे कि हमें पता है कि ऋषि पराशर जी ने सैंपल साइज, जो एज साइज का साइज रखा है, वो 120 years का रखा है. सो इफ यू लुक एट 120 years, तो उसमें कितनी बार 30 की साइकिल हम लोग कंप्लीट करते हैं? 5 times, right? And if you consider Jupiter, 12 years versus 120, so 10 cycles of Jupiter. So that is what he has given the entire lifespan, probable lifespan of a person. So these are also important factors जो transit में भी इफेक्ट करते हैं. जो transit की speed है and days one planet needs in one rashi, it's all dependent on this calculation. See, what you just told us, Aarti, was beautiful. And just add one point to the cycle that you had talked about. So this is actually called, there's a word called Shashti Purti. So we must have heard that word. So 60 years time is considered as a very important time, because at this time you would have seen some people retire and some people will Exactly. start growing. So what happens at this 60 years of age is that we have the 2 cycles of Saturn and 5 cycles of Jupiter would have happened. And both their Jupiter and Saturn are going to be at the same place जो हमारे जन्म के टाइम पे थे. So this is a very important stage of time which is there. And Aarti, one question which comes to my mind is that suppose the transit is going on of Shani आजकल मकर में transit कर रहे हैं, तो क्या हम तीनों यहाँ बैठे हुए हैं, हम तीनों की लाइफ में is it going to impact the same way, or is there going to be some difference in it? Definitely there has to be some difference, because हम सारे लोग एक टाइम पे एक ही चीज नहीं कर रहे हैं. There are millions of people across the globe. I'm not talking about a particular country, but everywhere on earth, right? तो सब एक समय पे एक चीज नहीं कर रहे होते, लेकिन बहुत सारे लोग एक समय पे एक चीज कर रहे होते हैं. Like buying a property, buying a car, and it is practical. If you see in a car showroom, or if you look at a building which is sold out like this, नई बनी है और सारे फ्लैट सोल्ड आउट हो गए suddenly. So वो एक फेज था, राइट, जब लोगों ने सबने खरीदा. बट सब में से कितने, there was a percentage of people, उनके लगन के हिसाब से लेट्स से तुला लगन के लिए शनि इज योग कार का प्लैनेट, एंड 2.5 साल का उनका पीरियड है एक राशि में, और वो चौथे घर में आ जाएंगे मकर के हिसाब से. तो ये एक प्रॉमिसिंग टाइम है फॉर समबडी टू बाय समथिंग रिलेटेड टू 4th हाउस, अगर उनका 12th हाउस भी एक्टिव है तो. बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग समथिंग, यू आर आल्सो स्पेंडिंग, समथिंग इज कमिंग टू यू, राइट? देयर विल बी मोड्स, देयर विल बी वेज कि कैसी चीज आएगी, इनहेरिटेंस से आएगी, खरीद के आएगी, या कोई किसी को गिफ्ट कर रहा है, वो डिपेंड करता है. और भी सिचुएशंस, हमें और भी प्लैनेटरी चीजें देखनी पड़ेगी. बट ये चीज होती है बहुत लोगों के साथ एक साथ. और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डबल ट्रांजिट. लाइक जो गुरु हैं, okay, the guru planet and gurus in general, they bless us. For example, let's say I've been working for last 2 years, and I'm a sincere hardworking person who worked hard. तो जुपिटर जी आए, उन्होंने ब्लेस करा कि भाई आरती को हम प्रमोशन देंगे, हम ब्लेस करते हैं, तथास्तु. उसके बाद शनि जी के पास फाइल जाएगी. शनि जी बोलेंगे ठीक है, जुपिटर जी ने आरती को अप्रूव कर दिया है, अब मैं उनका अकाउंट सेटल करूंगा. So when he look into my accounts, he'll say कि okay ठीक है, 3 महीने और लगेंगे. She is not, I mean उनके अकाउंट सेटल होने में 3 महीने लगेंगे. Then her increment will start and her designation will improve. तो the actual time of an event में शनि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए आयु निर्धारण, आयु क्या होती है? Our life on earth, like as human being, आरती कितना टाइम जी. Once I'm gone, then there will be no आरती like me, exactly, right? So that is an account. So Shani is that account. That is why he is also part of आयु निर्धारण basically, because he takes care of our karmas. Similarly, even छोटे से छोटी चीज है, उसमें भी हमारे कर्मास की कैलकुलेशन होती है, and then शनि जी टाइम डिसाइड करते हैं. इसे हम डबल ट्रांजिट कहते हैं. जो भी वापस, I think very soon Jupiter will retrograde and these 2 planets will be together. And they were visible. In fact, they were visible recently. It was all over in the news and on radios I was listening कि they are visible with naked eyes. So ये डबल ट्रांजिट की जो फिनोमिनन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत डिसाइसिव पीरियड होता है. बहुत सारी लाइफ में चेंजेस आ सकती हैं. Some people grow like anything, or they get some kind of a transformation, positive transformation, depending on कि उनके 12 घरों में से उनके लाइफ में कौन से घर में वो ट्रांजिट हो रहा है. So ये है डबल ट्रांजिट का स्टोरी, एंड हाउ मेनी पीपल डू सेम थिंग एट वन टाइम, बट
not all everybody does the same thing at same time.